Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 7. This is your first lecture of unit number 4. Today we are going to start our unit number 4. The title of the unit is Poet of Nature. This unit is a biography. And what is biography? Biography is a true account of someone's life. It is written by someone other than subject of the biography. This unit is the biography of William Wordsworth, who is known as the poet of nature. Let's start the reading and translation of this unit. Page number 26. The second of five children, William Wordsworth was born on April 1770 in the Lake District of Northern England. His mother died when he was just 7 years old. At the age of 13, his father, who was a lawyer, also died. After his father's death, the children were left under the guardianship of their uncles. He was sent to a grammar school in Hawkshead, a village in his district. The boyhood pleasure and outdoor memories in the natural scenery nurtured love in him. Although many aspects of his boyhood were positive, he recalled bouts of loneliness and anxiety. It took him many years and much writing to recover from the death of his parents and his separation from his sibling. Translation. The second of five children, William Wordsworth, was born on April 1770 in the Lake District of the Northern England. पाँच में से दूसरा विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770 को शुमाली अमेरिका के लेक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ. हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज जस्ट 7 years ओल्ड. उनकी वालदा का वफ़ात पा गई जब वो सिर्फ 7 बरस के थे. एट द एज ऑफ 13 साल की उम्र में हिज फादर हु वाज अ लॉयर आल्सो डाइड. उनके वालिद जो कि एक वकील थे वफ़ात पा गए. आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उनके वालिद की वफ़ात के बाद, द चिल्ड्रन वर लेफ्ट अंडर द गार्डियनशिप ऑफ देयर अंकल्स. बच्चे अपने चचाओं की कफ़ालत में आ गए. He was sent to a grammar school in Hawkshead, a village in his district. उन्हें उसके इलाके के Hawkshead ग्रामर स्कूल में भेजा गया. The boyhood pleasure and outdoor memories in natural scenery nurtured love in him. बचपन की खुशियों और बैरूनी कुदरती मनाजर की यादों ने उसमें मोहब्बत को परवान चढ़ाया. Although many aspects of his boyhood were positive, अगरचे उनके लड़कपन के बहुत से पहलू मुस्बत थे. He recalled bouts of loneliness and anxiety. वो तन्हाई और परेशानी के दुख को याद करता. It took many years and much writing to recover from the death of his parents and his separation from his sibling. उसे वालिदैन के इंतकाल और बहन भाइयों की जुदाई के गम से बहाल होने में बहुत सारे साल और तहरीरें लगी. यानी कि वो जब परेशानी में होते थे तो वो फिर लिखना शुरू कर देते थे. तो इसलिए जब इस परेशानी से निकलने के लिए उनको बहुत सारे साल लगे और इसी दौरान उन्होंने बहुत सा कुछ लिखा भी. नेक्स्ट पेज नंबर 27. In 1787, he started attending St. John's College, Cambridge. In 1791, he graduated from Cambridge. In these years, his inner appreciation for nature and its beauty bloomed to the highest level. In 1795, Wordsworth got a chance to live with his youngest sister, Dorothy. He also met St. Coleridge the same year, and soon they became great friends. They both decided to work on lyrical ballads, which got published in 1798. One of the Wordsworth's most famous poem, Tintern Abbey, was published in this book along with Coleridge's The Rime of the Ancient Mariner. Translation. In 1787, he started attending St. John's College, Cambridge. 1787 में उन्होंने सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज जाना शुरू किया. इन 1791 ही ग्रेजुएटेड फ्राम कैम्ब्रिज. 1791 में उन्होंने कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन की. इन दीज ईयर्स, इन सालों में, हिज इनर अप्रिसिएशन फॉर नेचर एंड ब्यूटी ब्लूम टू द हाईएस्ट लेवल. इन सालों में इस फितरत और इसकी खूबसूरती के लिए अंदरूनी कदरशनासी दर्जा कमाल तक अरूज पर पहुँची. In 1795,
Wordsworth got a chance to live with his youngest sister Dorothy. 1795 को वर्ड्सवर्थ को अपनी सबसे छोटी बहन डोर्थी के साथ रहने का मौका मिला. ही आल्सो मेट सेंट कॉलरिज द सेम ईयर. इसी साल वो सेंट कॉलरिज से भी उनकी मुलाकात हुई. एंड सून दे बिकम ग्रेट फ्रेंड्स. और जल्द ही वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए. द बोथ डिसाइडेड, दोनों ने फैसला किया टू वर्क ऑन लिरिकल बैलेड्स, कि वो लिरिकल बैलेड्स यानी गनाई गीतों पर काम करेंगे. विच गॉट पब्लिश्ड इन 1798, जो कि 1798 में शाया हुए. वन ऑफ द वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम टेंटन एबे वाज पब्लिश्ड इन दिस वर्क अलॉन्ग विद कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. वर्ड्सवर्थ की मशहूर नज़मों में से टेंटन एबे कॉलरिज की द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर के साथ इसी काम के साथ शाया हुए. Daffodils is one of his famous poems. In this poem, he compares himself with a cloud that wanders over the hills and valleys and observes a beautiful group of yellow daffodils beside the lake. Under the trees, he enjoys the beauty of nature through the fluttering and dancing daffodils. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. Translation: Daffodil is one of his famous poems. Daffodil उनकी मशहूर नज़मों में से एक नज़म है. इन दिस पोएम, इस नज़म में ही कंपेयर्स, वो मुवाजना करते हैं हिमसेल्फ, अपना या ख़ुद का, विद अ क्लाउड, एक बादल के साथ, दैट वॉन्डर्स ओवर द हिल्स, जो कि पहाड़ों, एंड वैलीज़, जो कि पहाड़ों पर इधर उधर घूमता है. एंड ऑब्जर्व्स, और मुशाहिदा करता है, ब्यूटीफुल ग्रुप ऑफ येलो डैफोडिल्स बिसाइड द लेक एंड अंडर द ट्री, और मुशाहिदा करता है ब्यूटीफुल ग्रुप्स ऑफ येलो डैफोडिल्स, खूबसूरत जर्द आबी नरगस के ग्रोहों का, बिसाइड द लेक, झील के साथ, एंड अंडर द ट्रीज, दरख्तों के नीचे. ही एन्जॉयज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर थ्रू द फ्लटरिंग एंड डांसिंग डैफोडिल्स. वो रक्स करते और लहलहाते आबी नरगस को देखकर फितरत की खूबसूरती का लुत्फ़ उठाता है. आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. मैं बादल की तरह इधर उधर घूमता रहा. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि वादियों और पहाड़ों के ऊपर तैरता है. Solitary Reaper is another great poem by Wordsworth. Solitary Reaper वर्ड्सवर्थ की एक और बहुत मशहूर नज़म है. इन दिस पोएम, इस नज़म में, ही टॉक्स अबाउट अ रिपर गर्ल, वो कटाई करने वाली लड़की के बारे में बात करते हैं. हु इज़ हार्वेस्टिंग द क्रॉप, जो कि फसल काट रही है. एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और खुद ही गा रही है. शी इज़ कटिंग एंड बाइंड द ग्रेन्स वाइल सिंगिंग अ सॉन्ग. वो अनाज काटते और बांधते हुए गाना गा रही है. ही कंपेयर्स हर स्वीट सिंगिंग विद अ नाइटिंगेल एंड कुकू. उसने उसकी खूबसूरत गाने को का मुवाजना बुलबुल और कोयल के साथ किया है. ही आस्क्ड द ट्रैवलर्स टू स्टॉप एंड लिसन टू हर सॉन्ग केयरफुली. वो मुसाफिरों को कहता है कि वो रुकें और इसके गाने को गौर से सुने. ही अप्रिशिएट्स द गर्ल हु इज़ कामली enjoying the beauty of nature alongside her work. वो इस लड़की को सराहता है जो अपने काम के साथ फितरत की खूबसूरती का लुत्फ़ उठाती है. Behold her single in the field, you solitary highlandlass. देखो इस तन्हा खेत में, वो तन्हा पहाड़ी लड़की. In his poem My Heart Leaps Up, the poet recollects his childhood memories about a rainbow. इनकी नज़म मेरा दिल उछलता है में शायर कोसे क़ज़ा के बारे में अपनी बचपन की यादों को दोबारा मुजतमा करता है, यानी जमा करता है. व्हेन ही सीज़ अ रेनबो, जब वो एक कोसे क़ज़ा को देखता है. हिज हार्ट बिकम एक्सट्रीमली हैप्पी, उसका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. एंड हिज फीलिंग्स इज़ कॉन्सेंट व्हेन ही इज़ ओल्ड, और ये एहसास उसके साथ बुढ़ापे तक मुसलसल रहता है. ही विशेज़ टू डाई इफ़ सच फीलिंग स्टॉप्स इन फ्यूचर. वो मरने की ख्वाहिश करता है अगर ये एहसास मुस्तक़बिल में रुक जाता है. माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड. मेरा दिल उछलता है जब मैं देखता हूँ. अ रेनबो इन द स्काई, आसमान पर एक कोसे क़ज़ा. सम ऑफ हिज अदर फेमस पोएम्स आर रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. द वर्ल्ड is too much with us, the sun has long been set, to a butterfly and tender abbey etc. उसकी कुछ और दूसरी नज़मों में रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट,
टू अ बटरफ्लाई एंड टेंटन एबे वगैरह हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन राइडल माउंट इन 1850। वो राइडल माउंट में 1850 में वफ़ात पा गए एंड वॉज बरीड एट सेंट ऑसवर्ल्ड चर्च इन ग्रासमेयर, और ग्रासमेयर के सेंट ऑसवर्ल्ड चर्च में मदफून है। नेक्स्ट पैराग्राफ, वर्ड्सवर्थ वॉज नोन एज द पोइट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ को फितरत के शायर के तौर पर जाना जाता है। ही वॉज नॉट जस्ट द पोइट ऑफ नेचर, वो सिर्फ फितरत के शायर नहीं थे, बट आल्सो द पोइट ऑफ सोल एंड इमेजिनेशन, बल्कि वो रूह और तहय्युल के भी शायर थे। ही बिलीव दैट अ चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड नेचर बट बेटर बिकॉज ही हिमसेल्फ was part of nature. Beauty for him, nature was an internal source of great comfort and strength. उनका यकीन था कि बच्चा चूँकि फ़ितरत की खूबसूरती का हिस्सा होता है, इसलिए वो फ़ितरत को बेहतर तौर पर समझ सकता है। उनके लिए फ़ितरत बहुत बड़े सुकून और क़ुव्वत का अबदी ज़रिया थी। He always convinced nature as a living personality and a source of consolation and joy. वो हमेशा फ़ितरत को एक ज़िंदा शख्सियत और दिलजोई और खुशी का ज़रिया ख्याल करते थे। Student, after the reading and translation of unit number 4, Poet of Nature, let's move to the homework. I will send a PDF file with this video. You have to write down meaning, synonym, comprehension, focus and sentences on your copy according to the writing rule. Thank you very much.